بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے، اللہ سے محبت کی تکمیل۔ باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانب سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے تہجد نماز فرض عبادت کا حصہ نہیں بنائی۔ یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو، ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کہیں نہ لگ رہا ہو، ایسا عشق جس کے بغیر جس کے ہر حکم پر چپ چاپ سر جھکا لیا جائے۔ تبھی تو اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلی بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنی پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کے کئی بہانے بناتا ہے۔ یہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، نہ یہ مرحلہ مستقل ہے۔ وہ جو عادی ہے وہی کفیل ہے، وہ جو دور لگ رہا ہے وہ تمہارے ہی قریب ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا، وہ تہجد کے سجدوں کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہاں سے راستے نکال لیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ثواب ملے گا یا کتنے گناہ مٹ جائیں گے، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا بن گیا، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے۔ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے جو صرف اس کے لاڈلے بندوں کو نصیب ہوتی ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے، مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ نہ سوچو کہ سجدہ میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی تو اللہ جانتا ہے کہ تم زمانے کے ستائے ہوئے ہو، آزمائشیں کمر توڑ چکی ہیں، مزید صبر نہیں ہوتا، لیکن اسے پسند آتا ہے تمہارا تکلیف میں مسکراتے رہنا، اسے پسند آتا ہے تمہارا ہر بار یہ کہنا کہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب میرا اللہ میری سنے گا، اسے پسند ہے تمہارا یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ تہجد بے چینیوں سے راحت ہے، تہجد ٹوٹے ہوئے دلوں کے زخم کا مرہم ہے، تہجد مضطرب روح کو سکون دیتی ہے۔ تہجد تو اللہ سے اظہار محبت میں، تہجد میں زبان نہیں آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تہجد ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے،
तहज्जुद दुआओं की कबूलियत का ज़ाविया है। रोती भीगती तहज्जुद की 2 रकात और गिड़गिड़ाती दुआएं दिल भी हल्का कर देती हैं और मुकद्दर भी बदल देती हैं। सुनो, जब भी तुम तन्हा महसूस करो और ये समझो कि कोई नहीं है जिससे तुम अपना दर्द बयान करके दिल को हल्का कर सको, तो सीधा जाए नमाज की तरफ रुख कर लेना। यकीन मानो वो रब है ना, वो वही तो बड़े तो प्यारे से तुम्हें सुनेगा, और जब तुम इसके सामने टूट कर रेजा रेजा हो जाओगे तो वो तुम्हारी ज़ात को अपनी रहमत से समेट लेगा और अपनी मोहब्बत से तुम्हें मुकम्मल कर देगा। इसलिए कभी भी अकेले होने से मत डरना, वो अल्लाह हमेशा तुम्हारे करीब है। बस एक बार दुआ से अल्लाह को पुकार कर देखो। और तहज्जुद तो अल्लाह से मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। तहज्जुद की दुआ मुकद्दर बदल देती है जो दुख सुकून नहीं लेने देते। तहज्जुद ताल्लुक़ और सुकून बदलने की ताकत रखती है जो दुआएं फ़र्ज़ नमाज़ों में कबूल नहीं हो रही होती, वो तहज्जुद की नमाज में कबूल होने की ताकत रखती है। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को 4 चाँद लगाने की ताकत रखती है। ये जो दिल इतना बेचैन है, तहज्जुद रूह तक में सुकून पहुंचाने की ताकत रखती है। तुम्हें जो नामुमकिन लग रहा है, तहज्जुद से मुमकिन बनाने की ताकत रखती है। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो परेशान ना हो, तहज्जुद मौजज़ा करने की ताकत रखती है। आंसू को खुशी में, बेसुकूनी को सुकून में बदलने की ताकत रखती है। तहज्जुद में अल्लाह कहता है, कोई मांगने वाला है जो मुझसे मांगे और मैं इसे अता करूं। तो जान लो कि तहज्जुद अल्लाह से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। रात के आखिरी पहर में की हुई तुम्हारी अल्लाह से बातें तुम्हारे सुकून का बाइस बन जाएंगी, जो तुम्हें कभी मिला ही नहीं। वो तुम्हें सब्र अता करके तुम्हारी बेबसी को ऐसे दूर कर देगा कि तुम्हारे दिल में आखिरी से उड़ान पैदा होने लगेगी। इसकी ये चाह है कि तुम इसकी चाह में राजी हो जाओ। तुम्हारा मांगा हुआ एक खतरे को कैसे समंदर बना देगा, तुम समझ ही नहीं सकते कि इसकी मसलहतों को देखना। अब वक्त के साथ साथ वो कैसे तुम्हारा दिल बदल देगा। तुम नायल हो इस कदर मोहब्बत से, कभी भी मांगे तो नवाज देता है वो मोतियों से। तो ये बस कुछ पल का इम्तिहान है तुम्हारा। सब्र कर लो ये सोच कर कि ये आजमाइश का आखिरी वक्त है। अनकरीब तुम्हारी दुआ बदल जाएगी। तुम्हारा नसीब अल्लाह ने लिखा है। अल्लाह है, अगर नहीं बदल रहा वो तुम्हारा हाल बदल देगा। कभी दिन रात ऐसे भी गुजरते हैं कि हर वक्त अल्लाह को पुकारता है, कि दिल हर वक्त अल्लाह को पुकारता है। अल्लाह को पुकारने के लिए नमाज शर्त नहीं है। रात को सोते सोते अचानक आँख खुल जाए और तुम्हारा दिल अल्लाह को पुकारे, या अल्लाह ये परेशानी है, तो अता की निगाह तो तब भी आती है मालिक की तरफ से। हाँ ठीक है, तो नमाज रब से बात करने का बहाना है, और ये बहाना नमाज के अल्फाज पे तवज्जो कब और अपने गम से ही दिल बता दिया जाता है। अता तो तभी तुझे ढूंढ लेती है, करम तो इसी वक्त तुझसे पहुंच जाता है। ना दिखावे का ताना दिया जाता है, ना थे ये कहा जाता है, और ना ही ये कहा जाता है कि अपना गम बताने के लिए नमाज पढ़ने आ गए। फिर तो तेरा आना देखा जाता है। रिकतें कौन देखता है, सजदे कौन गिनता है। वो मोहब्बत करने वाला रब है, वो बस गम सुनता है। पोटली बनाओ अपनी गम की और इसके सामने रख दो। रब जाने, गम जाने, रास्ता जाने और फिर तकलीफ़ें जाने। तहज्जुद के लिए तुम्हें लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम खुद तहज्जुद के लिए उठते हो। यही फितरत तहज्जुद फितरत नहीं, फ़र्ज़ है। लेकिन अगर ये फितरत आ जाए तो इंसान को संवार कर रख जाती। तहज्जुद पढ़ने वालों के एतक़ाद ऐसा है कि जैसे दूर एक बंजर ज़मीन ये पौधा लगाया जाए और ईमान इस कदर मजबूत हो कि ये पौधा फूल देगा। तुम्हारा ईमान इस बंजर ज़मीन से चीख जाएगा और पौधा फल दे जाए। मजबूत दरख्तों की जड़ ये ताकत होती है कि
जो अल्लाह की पनाह में हो इसकी जड़ उखाड़ना नामुमकिन है। जब तक अल्लाह ना कराए कोई कर नहीं सकता, कोई दुश्मन तुझे हिला नहीं सकता, तहज्जुद की रिकत नहीं गिनी जाती, आंखों में आंसू दिल का गम तन्हाई देखी जाती, जिसके पास रकम के अलावा कोई बताने वाला ना हो। कैसे मुमकिन है कि इसके दिल की बात रब ना सुने, कैसे मुमकिन है इसके दिल की बात कोई ना सुने। दिल बहुत रंजीदा है ना, तकलीफ़ है, परेशानी है, दुआ करो अल्लाह से। चाहे नमाज से तब तक ना उठो जब तक सारा दुख अल्लाह के सामने ना रख दो। खुद को बताओ, समझाओ कि रो पड़ना गलत नहीं, हद से बर्दाश्त ख़त्म हो गई है तो रोना आता है। मालिक से क्या छुपाना, तुम्हें पता है ये चाहे नमाज पर बैठ के अपने आप नहीं होता, ये तुम पर अल्हम्दु शरीफ रहे हो लेकिन अल्फाज की जगह आंसू कर रहे होते हैं। करवाया जाता है, याद रखना खुद नहीं होते, सजदे अस्वाब बनाए जाते हैं, तोड़ा जाता है फिर सजदों में लाया जाता है। वरना अल्लाह इतनी मोहलत और तौफीक कहाँ दे तुम्हें कि तुम फ़र्ज़ भी अदा करो। तो अगर इसके सामने रोने की तौफीक मिल गई है ना तो समझ लेना अल्लाह खैर करने पर आ गया है। फिर इससे कुछ ना छुपाना, वो तो टूटी शाखों से जड़ें निकाल के जड़ों से दरख्त खड़ा कर सकता है। वो एक गम का मदावा करेगा, बस शिकायत ना करना इससे। जब तक तुम खुदा की हिकमत से उलझते हो उदास रहते हो, लेकिन जब तुम अपनी कहानी अपने रब के सुपुर्द कर देते हो फिर तुम्हारा रब मौजज़ों की राह तुम पर खोल देता है। वो अता का हर दर तुम्हें खोल कर देता है, वो अता का हर दर खोल देता है। जो रब तुमसे बेहद प्यार करता है वो भला अपने बंदे को कैसे गमगीन कर सकता है। वो तो बंदे को दुनिया से बेनियाज करता है इसलिए ताकि वो जान सके कि इसका रब कब से इसके लौटने के इंतज़ार में है। जो रात को दिन में बदल सकता है वो अपने बंदे की ज़िंदगी में नूर भी ला सकता है। बस वो सब्र और तवक्कुल की तौफीक देता ही तब है जब वो अपने बंदे की दुआ पर कुन कहना चाहते हो। और फिर वो वक्त आता है कि बंदा सजदे में गिर कर कहता है कि बेशक मेरा रब मुझसे राज़ी हो गया। जब तुम अल्लाह के सिवा बाकी चीज़ों में अपना सुकून तलाश करने लगते हो तो वो इन सारी चीज़ों को तुम्हारे हाथ में थमाकर तुम्हें बेसुकून कर देता है। हर शय की तहमील के बाद भी तुम्हें अपना आप खाली सा लगने लगता है। फिर अज़ान की आवाज़ कानों तक पहुँचती है मगर दिल तक नहीं पहुँच पाती। फिर ना इबादत इसकी बेचैनी को ख़त्म कर पाते हैं और ना सजदों में चैन पड़ता है। यकीन का दावा कर लेना बहुत आसान होता है मगर इम्तिहान तो तब लिया जाता है जब हम यकीन पर भारी हो जाता है, जब दुख की शिद्दत मसलहतों को तस्लीम नहीं कर पाती। फिर सब हासिल करके तुम फिर भी बेसुकून हो जाते हो, फिर हर खुशी तुम्हें उदासी लगती है। फिर सब हासिल करके तुम फिर भी बेसुकून हो जाते हो, फिर हर खुशी तुम्हें उदासी लगती है। अल्लाह तुम्हें बताता है कि मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। सुकून तो सिर्फ इसी से मिलता है बेशक। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।